I only believe in Jassi Bhai because game changer player is only one player, Jassi Bhai. But today we are here on Game Time Banter with Riddhesh and Parth. So actually, thanks to introduce Riddhesh. Riddhesh is actually one of my very old friends, and I'm glad that you are on the show today. Riddhesh, मुझे खाली है ना ये Playbox TV के बारे में जानना है यार. Please जरा बताओ ना उसके बारे में. So Playbox TV is basically an OTT aggregation company. We have an app, and you have all the OTTs like Sony Live, Z5, Disney Plus, Hotstar, everything on it. So you buy our membership, and it relieves you from the hassle of going through other apps, e-apps, वो app. There's one place you have all the content over here, and then it redirects you to some apps. Others it plays inside. So अगर BGT test match देखना है, you get one of our packs which has Disney Plus Hotstar in it, and you watch it through our app. So that's pretty much what Playbox TV is. So Playbox basically all-rounder है OTT. Well, so now that you know it, you can watch the second test of the BGT on Playbox TV. And with that, let's get into this video. Welcome to Game Time Banter. मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अगर Playbox TV पे देख के इंडिया सेकंड टेस्ट जीता है, मैं पूरा सीरीज Playbox TV पे देखूंगा. प्लीज लो सब्सक्रिप्शन देखो तुम लोग. इंडिया के लिए सब हम लोग Definitely इंडिया के लिए. क्या कड़क phenomenal first test था ये. 295 रन्स की विक्ट्री. टेल मी वेरी ऑनेस्टली, ओके, फर्स्ट टेस्ट के पहले डिड यू एक्सपेक्ट दिस विक्ट्री कमिंग? Not at all. मतलब हम लोग as underdogs जा रहे थे, quite frankly. I didn't scarcely expect this. That too इस level की victory. I don't think anybody did. Like people were talking India's on the back foot. Every guru had this thing कि India's gonna lose. Actually, I saw a post where a lot of gurus had said कि कौन कितना जीता है. ऑस्ट्रेलियन गुरुस थे by the way. अरे इंडियंस भी बोल रहे थे यार. पर्थ पे किसी ने नहीं बोला था इंडिया जीतेगा. आगे जाके SCG पे थोड़े लोगों ने बोला था इंडिया जीतेगा and all. पर्थ पे I don't think anybody expected. And I think first test जाते हो generally thought रहता है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं, first test situation देखेंगे, एनालाइज करेंगे, बाद में टीम बनेगा, कोर बनेगा. रोहित शर्मा नहीं खेल रहा था, शमी नहीं था, मतलब इतना सब होने के बाद सबको लगता है ठीक है फर्स्ट टेस्ट हारना था ही हमें. बट I mean, मैं अभी भी मेरे को ये नहीं समझ पा रहा है, जब हम वो मैच भी देख रहे थे डे 1 पे, जब हम ऑल आउट हो गए तब पता चल गया कि चलो ठीक है फर्स्ट टेस्ट तो गया. वही दिन ऑस्ट्रेलिया का ऐसा बैंड कैसे बजा है यार. मतलब मैं खाली सोच रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव बॉलिंग कब किया था ऑस्ट्रेलिया में. Of course, last tour was much better because of the situation that was there in Adelaide, and then we won the entire series. But यार ये वाला टेस्ट तो कुछ कमाल था यार सच्ची में. इस पे से I'll tell you एक मीम जो मैंने देखा था स्पेसिफिकली कि पैट कमिंस कम्स इनटू द फ्रेम और टेक्स्ट आता है कि फर्स्ट मैच तो वर्ल्ड कप में भी हम हारे थे. तो आई डोंट नो, पैट कमिंस बहुत बोलता है यार. और प्रॉब्लम ये है कि जो बोलता है ना वो कर रहा है. उसने साइलेंस कर दिया था वो भी अहमदाबाद में आके. मेरे को तो उस चीज का बहुत बुरा लगा. The best part I think about this test match was, and what made me really happy was, Pat Cummins did not look at his best. True. He was actually the worst bowler in the Australian side. Yeah, probably. He did not look his best. Even Stark for that matter. मतलब Jaiswal commenting something to Stark that you are bowling slow. मतलब भाई एक तो तेरा पहला सीरीज है, तू इस तरीके से स्टार्क को जवाब दे रहा है. उसका हटा, उसने बॉल डालना चालू किया ना, तेरे साथ पीछे 5 लोग आ जाएंगे भाई डगआउट. आई थिंक स्टार्क का इकोनॉमी सबसे ज्यादा था सेकंड इनिंग्स में. But just before we talk about Australian bowlers, Indian bowlers का you said you haven't seen such good comprehensive bowling पिछले series मतलब इतने टाइम से. But first innings में comprehensive bowling unit था इंडिया का, या was it a one man show? And you know whom I'm talking about. See, it started with that one man show. मतलब जस्सी भाई कैप्टन है, जस्सी भाई knew that he had to lead from the front. अब उसके हाथ में तुमने ये चेरी दे दिया. अब पिच भी उसके ऐसे सपोर्ट में आ रहा था. वी वर टॉकिंग जस्ट बिफोर दिस अबाउट द विकेट्स कि जिस तरीके से उसने मानस का विकेट लिया, इवन द डेब्यूटेंट का विकेट लिया. इमेजिन कि बॉल पिच हो रहा है, एक तो उसका नेचुरल इन स्विंग जा रहा है, उसमें भी पिच होने के बाद सीमिन कर रहा है. मतलब बैट्समैन के पास टाइम ही नहीं है एडजस्ट करने के लिए इतना इस सिचुएशन में. सो ही डेफिनेटली टुक इट फ्रॉम द फ्रंट. एंड सिराज तो यार मतलब पिछले सीरीज का तो उसको लग रहा था वही लीडर ऑफ द पैक है. सो ही कैरीड दैट मोमेंटम. आई नो एवरीवन हैड अ बैड सीरीज बैक इन इंडिया, बट वो साइड पे रख के यहाँ पे आके उस तरीके से खेलना.
एंड हर्षित राणा आई थिंक इज अ गुड फाइंड फॉर टेस्ट क्रिकेट, मतलब उसने अच्छा खेला. But Harshit Rana is not a surprise find because he averages around 24 या कुछ in first class. इन डोमेस्टिक. And Gautam Gambhir has dealt with him in KKR. So को I don't think ऐसा था. दो Delhi boys. हर्षित राणा को उठाया, वो obviously हम सबका first thought होता, but if you see there was a lot of backing to pick him up, and obviously he bowled like I think जो attitude था हमारे bowlers का एक bowling करते वक्त, वो पूरा सेट हुआ बिकॉज ऑफ बुमराह का वो स्पेल. दैट इज ट्रू. वो कॉन्फिडेंस ऐसा लगा कि यार ये लोग दे आर हेल्पलेस, क्रीज पे समझ नहीं आ रहा उनको खेलना कैसे. एंड ऑस्ट्रेलिया से वो फर्स्ट टेस्ट में एक्सपेक्ट करना इज नॉट पॉसिबल यार. मतलब यू हैव नेवर सीन ऑस्ट्रेलियंस हेल्पलेस इन एनी ऑफ द सीरीज दैट दे हैव प्लेड. तो ये मतलब सच्ची में ये अच्छा द प्लेयर यू मेंशन्ड मैक्सवीनी, आई थिंक उससे अनलकी डेब्यूटेंट हो नहीं सकता. मतलब इमेजिन करो कि आप डेब्यू कर रहे हो आपकी नेशनल टीम के लिए, टेस्ट पे आ रहे हो और द बॉलर जिसको फेस करो बुमराह है. भाई कुछ भी हो, ये बंदा आके मेरी विकेट लेके जाता है. बट बुमराह मे बी इफ यू सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट मैक्सवीनी यार गंदा डेब्यू किया, बट इट्स नॉट अ बैड डेब्यू बिकॉज वो जो बॉल थी इट वाज इम्पॉसिबल टू प्ले. वो गुड लेंथ पे बहुत बाहर से अंदर घुसी है, गुड लेंथ पे, और बाउंस होकर और अंदर घुसी है, वो पैड के अंदर घुस गया. मैं अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जस्ट द वे विराट कोहली ने जो फर्स्ट विकेट लूज की, आई वाजंट टू स्कैर्ड बिकॉज इट वाज एन इम्पॉसिबल बॉल. वो आउट ऑफ नोवेयर चेस्ट पे उठी है, वो एज लग गया. दैट वाज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ अ नॉर्मल बॉल. सिमिलरली मैक्सवीनी को भी बहुत डिफिकल्ट. सेकंड वाली बॉल थोड़ा वो था, ऑब्वियसली इट वाज प्लेएबल, बट जो फर्स्ट इनिंग्स वाली बॉल थी आई डोंट थिंक एनीबॉडी कुड हैव प्लेड. उसने कॉन्फिडेंस ही लूज कर लिया था. तो फॉर हिम इट वाज अबाउट मेकिंग समथिंग इन द सेकंड इनिंग्स, बट आल्सो दैट डिडंट हैपन. बट आई थिंक दे विल बैक हिम. मतलब ऑस्ट्रेलियंस आल्सो वांट एन ओपनर, दे डोंट हैव समवन राइट नाउ. तो उसको पक्का वो चांस मिलने ही वाला है कि वो थोड़ा एटलीस्ट एक दो मैच खेले. लेकिन अभी उसके लिए दूसरा प्रॉब्लम ये है कि दूसरा टेस्ट होने वाला है, पिंक बॉल होने वाला है. हमारा जितना स्विंग में हम जितना डरते हैं उतना उसको भी बुमराह से तो डरना ही ऑब्वियसली. या and the point he mentioned about कि हर्षित राणा was not a surprise find, I agree, but पता है बहुत बात इस अराउंड थी कि जो फर्स्ट टेस्ट की 11 अनाउंस की इंडिया की, उसमें बहुत क्वेश्चंस पूछे. करेक्ट. मतलब पिकिंग हर्षित राणा ऑन टॉप ऑफ आकाशदीप एंड प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है चलो फिर भी आप समझ लो कि किसी एक को ट्राई आउट करना था तो एक्सपेरिमेंट कर लिया. बट वॉशिंगटन सुंदर, टेकिंग वॉशिंगटन सुंदर ओवर प्लेयर्स लाइक अश्विन एंड जडेजा, how is that justifiable? I think in Australia, Washington Sundar picks himself. His batting record is phenomenal over there as a bowler. Okay. Very good batting record. He is, I don't think you can call him a bowling all-rounder. He's a proper batsman. He gives you 50-50 runs ऐसा सब. Plus, last अभी जो इंडिया में सीरीज हुआ था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, he was the best player. Yeah. The other two Agreed. did not. So I think even Washington Sundar, like a lot of people said this, but I know Ashwin is a goat. He is the best off spinner I have seen, at least in my lifetime. But right now, Washington Sundar did make sense, especially with our batting lineup, such a trembling batting lineup. जो नहीं खेल पा रहे थे. We weren't sure about how they'll perform. Right. We needed extra batting. And that is the reason I guess कि Washington was preferred. See, Jadeja also is now known for his batting more than his bowling. मतलब उसका वो confidence उसने टीम को दिलाया कि he can actually be a good batting all-rounder also. True. But I think Washington also, for the fact that last series when we played in Australia, Washington also played a good role there. So उसका वो point consider करके न्यूजीलैंड सीरीज he was outstanding. So ये सारे पॉइंट्स में आई गेस उसको वो स्लाइट एडवांटेज मिल गया. एंड मे बी सी एवरीवन माइट हैव असेस्ड द पिच इन अ वेरी डिफरेंट वे. जब हम लोग भी टॉस जीत के वो बैटिंग लिया, वी वर आल्सो थिंकिंग कि यार वी नेवर नो कि क्या होने वाला है. करेक्ट. एंड वो फर्स्ट डे पे पिच एज कंपेयर टू व्हाट हैपेंड ऑन द सेकंड डे वाज, आई मीन वो कलर देख के लग रहा था यार ये दूसरा पिच लेके आया है. बम्बई जिस तरह घर पे मूड बदल I swear. तो वो हालत में I guess India had that upper hand and Washington was used effectively. And see, Ashwin Jadeja मैच विनर्स है यार, कभी भी उनको टीम में लेके आओ कभी ना कभी परफॉर्म करने ही वाले. True. तो आगे भी 4 टेस्ट है, you might need their services. Now considering that we are playing pink ball, वो pink ball में Ashwin when he played last time, वो वाले सीरीज में उसने जो स्मिथ और मानस को वो जो डाला था विद दैट बॉल, आई गेस मे बी दैट कैन बिकम अ पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन एंड मे बी दे कैन ब्रिंग हिम pick him up, yeah, for the second one. The challenge with removing Washington is that we are losing one batter also. Agreed. And Jadeja has a brilliant batting record in England. Yeah. He's not in England blindly you pick Jadeja because he has a very good batting record, but he actually doesn't have
batting record in Australia. Australia, I think Ashwin has अश्विन a better record. अश्विन लास्ट सीरीज यार Ashwin ने just प्रॉब्लम century काश वो रिवर्स स्वीप नहीं खेला होता. अभी इंडियंस का प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, कभी भी हम धोनी की बात करें, जडेजा की बात करें, किसी की भी बात करें, वो पहले के फ्लैशबैक्स आ जाते हैं. सो व्हेन ही सेड कि जडेजा का इंग्लैंड में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, मैं 2019 वाले में चला गया. भाई मैं ग्राउंड पे था, जडेजा 6 मार रहा था ना, हम लोग सब कूद रहे, फिर मालूम पड़ा जब लोग खड़े हैं तो नहीं मार रहे, तो हम लोग पूरे स्टैंड में डांट डांट के बिठा रहे हैं, और न्यूजीलैंड वाले को भी बिठा रहे. और मैं एक 6 तो मैं ऐसे प्रे कर रहा हूँ और आके मेरे आगे गिरी तो मैंने हाथ ऐसे किए. बस यार वो. But you know, we were talking about debutants कि हमने बात की मैक्सवेनी की, but let's talk about our अपना देसी debutant यार जायसवाल. मतलब not a debutant but again a young player, first test here in Australia. And I'll be very honest, मतलब it was not only me but I've read this on a couple of platforms जहाँ पे people were saying कि जायसवाल के लिए बहुत testing होने वाला है ये. Especially मतलब he is not the kind of player जो you know he plays on the back foot a lot more, a lot less. Maybe he's suited for जैसे इंग्लैंड में उसने अच्छा खेला, but then again in the New Zealand series he wasn't that convincing. So coming in here and playing that knock of 160, 161, but I think brilliant performance from Jaiswal. प्रॉब्लम था, he swings his bat a lot at wrong times. जो फर्स्ट इनिंग्स में उसने विकेट दी, he threw it away. Yeah. मतलब he flashed it out of nowhere and Stark was bowling good lengths. Correct. तो प्रॉब्लम वो था. सेकंड इनिंग्स में I think what's great about Jaiswal is he learns, he's a quick learner. He realized कि हाँ नहीं मैंने वो गलत किया था, अभी स्टार्ट में थोड़ा carefully खेलना है. He did that. Instead of flashing his bat, he started playing strokes. So I think I saw that difference, and I think that is a very great quality to have. And also KL ने उसको बहुत compliment KL, किया yeah. है. He said that. After every over, the discussions that were happening, I guess KL was just trying to make him understand that यहाँ पे तू freely नहीं खेल सकता. You need to just stick to the wicket, take your time. Once you are in your flow, तुम उसके बाद जो मारना चाहते हो मारो. मतलब उसने जो uppercut मारा, मतलब once you are in that groove, कोई भी, I think ऑस्ट्रेलिया में पुजारा ने हमें ये चीज दिखाया है, रहाणे ने दिखाया, इवन कोहली फॉर दैट मैटर, केएल हैज डन इट ट्वाइस इन दिस सीरीज, इन दिस मैच रन नाउ, कि तुम सिर्फ टिके रहो. वंस यू आर इनटू दैट जोन, तुम्हारे शॉट्स नेचुरली फिर आना स्टार्ट करेंगे. जायसवाल का आई थिंक वही था कि वो अब तक जब भी खेला है ना, इज ऑलवेज बीन वेरी अग्रेसिव. आई गेस वन ऑफ द रीजंस इज सामने रोहित होता था वो टाइम, रोहित वो प्रमोट कर रहा था दैट यू कैन प्ले अग्रेसिव, बट दैट सिचुएशन डिमांडेड डिफरेंट. Not that kind of a player. He started off as a very actually IPL turned that. exactly. But then the audacity to go and tell Mitchell Stark कि भाई slow आ रहा है, भाई slow आ रहा है. लाइव देख रहा हूँ, नहीं क्या बोल रहा है तू भाई, इसको मत भड़का. मतलब दैट वाज, सी सामने एक टाइम पे कोहली हो ना, तो कोई भी करने के लिए रेडी हो, क्योंकि पता है कि चलो वो लोग ने मेरे को कुछ बोला तो कोहली बोल देगा. सामने केएल भी था, वो भी शांत है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि यार मतलब क्या ही है. But then that shows the confidence ना. In a way. With this game. Yeah, he went on to मतलब finish his century, even complete the 150. And ये जो quality है ना जायसवाल की of converting the hundreds into 150s, I think ये is something that India was probably missing from a batsman in a very long time. And even KL Rahul की जो नॉक थी, I think वो भी काफी underrated गई in that match. मतलब people are not talking about it a lot. I think it was the most important knock. It set the tone basically. At least 150 तो उसी के वजह से आया. 150 तो नहीं आता. वो जो फर्स्ट इनिंग्स में आउट हुआ, कंट्रोवर्सी डेफिनेटली था. I mean, I was just going to come to that, but yeah. वो डिबेट यहाँ पे भी चल रहा है. तो मैं भी वही बोल रहा हूँ, I didn't feel it was out. वो क्लियरली गैप दिख रहा था. You have so many angles. Again that debate comes down to the point, इतना टेक्नोलॉजी होने के बाद जब तुम यूज ही नहीं कर पा रहे हो. एंड ये प्रॉब्लम शायद हम साउथ अफ्रीका जाए या हम ऑस्ट्रेलिया जाए, एक कंट्रोवर्सी होना तो पक्का ही है. मतलब वो लोग स्टीव बकनर की याद आ गई यार, वो पूरा फिर वो और एक था पता है, वो रिकी पॉन्टिंग को पूछा था आउट है पक्का, हां ठीक है आउट. अबे ये क्या है बे, बैट्समैन को पूछना, वैसे रिकी पॉन्टिंग को पूछ रहे. नहीं तो आई गेस दैट इज वेयर वो, इफ ही वुड हैव एक्चुअली प्लेड वेल इन दैट फर्स्ट टेस्ट, ही वुड हैव बीन इन मच द फर्स्ट innings, yeah. He would have been in much more confidence, but hats off to KL. मतलब coming back from that situation जहाँ पे वो not out था, फिर भी out दिया. Second innings में after both the teams being out under 200, वो इंडिया ने भी सोचा रहेगा कि हम जब बैटिंग करने आएंगे सेम सिचुएशन हम फेस करेंगे. Correct, हाँ. But then जायसवाल getting that and then कोहली getting 100. बट केएल राहुल वाला वो सीन था, कभी तुम लोग का तो है वो ज्योग्राफी पढ़ के गए और हिस्ट्री निकला पेपर, और सुबह सुबह मालूम पड़ा है सब लोग की हिस्ट्री को क्यों कर ली. वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ कि इनको लगा यार ये तो
इसको तो लिया क्यों, सब लोग पूछ रहे हैं, तो ये तो कुछ नहीं करेगा, and that guy played and they weren't prepared for him. I think it felt like that. Maybe so. Now has he cemented his spot then? ऐसे परफॉर्मेंस के बाद No. सी इंडिया में है ना, सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि स्क्वाड जब चेंज होता है ना, वो पूरा बैलेंस ही चेंज हो जाता है। अब रोहित शर्मा कमिंग इन, सो रोहित विल डेफिनेटली ओपन। अब पडिक्कल जो नंबर 1 पे ये सिचुएशन पे थे, मतलब आई थिंक पडिक्कल विल बी आउट ऑफ द स्क्वाड। That's the logical. We'll come to the squad in just a minute. I want to talk about this क्योंकि ये भी बहुत interesting है. But just another player that I want us to discuss is Nitish Kumar Reddy, another debutant getting his first cap. लोग almost ऐसे statements दे रहे हैं कि, and I know the performance doesn't really back that, but people are saying कि India finally can end their search for a good red ball, fast bowling all rounder. Too early to अभी judge. से उसको एडम गिलक्रिस्ट माना। challenge but he's a good find usne so for SRH he has played well, and I guess that's the reason why he has got this opportunity. Also domestic of course he has performed, and Gautam Gambhir I feel he's going to back both these guys, मतलब हर्षित राणा एंड नितिश रेड्डी। बट एक टेस्ट हुआ है, एक सीरीज थोड़ा जाने दो, एटलीस्ट 2-3 जगह पे खेलने दो, उसके बाद वी कैन टर्म हिम एज अ गुड बैंकेबल ऑप्शन, बट इट्स टू अर्ली राइट नाउ। And before we come to what the squad will look like in the next test, considering the new players have come in, captaincy के अराउंड भी बहुत बात है कि जस्सी भाई एक ही मैच मैंने बोल दिया है यार कि हम सिर्फ ये मैच के लिए एक मैच होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि ये आज जीत गए तो हाँ खत्म, अभी सब चेंज कर देंगे। आप like you have to imagine years of performance, years of this thing, research, team chemistry, everything goes into deciding the captain of the Indian team. Correct. Right. एक टेस्ट मैच किसी ने जिताया उस पे भाई रोहित को निकाल नहीं सकते यार, ही इज द स्टैंड ये आउट। तो बड़ा पाव खाना या सैंडविच खाना उस पे भी ज्यादा सोचते हैं अपना कैप्टन थोड़ी ना सेम मैच पे डिसाइड कर सकते हैं। वही एक जीत गए, बुमराह लेके जा रहे टीम को, तो उसका मतलब ये थोड़ी रोहित पीछे छोड़ देगा। रोहित भी आएगा तो वही कंटिन्यू करेगा। रोहित इज प्रूव्ड, वो फाइनल्स में आया है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट हियर इज दैट them playing for the same franchise in IPL, वो relations उनका काफी टाइम से बेटर। ऑफ कोर्स बुमराह भी रोहित के अंडर ही यार इतना आ गया है, रोहित के कैप्टेंसी में बुमराह ग्रो हुआ है, तो जो कैप्टेंसी बुमराह को भी आ रहा है, थोड़ा बहुत क्रेडिट तो एनीवेज रोहित को जाना ही चाहिए। सो रोहित कमिंग बैक, रोहित डिजर्व्स दैट कैप्टेंसी स्पॉट, उससे कोई ले नहीं सकता। ही इज वन एज द T20 वर्ल्ड कप बॉस। तो यार हम लोग कब से आईसीसी, अब तो मतलब ही इज अ डैम गुड प्लेयर, डैम गुड कैप्टन, एंड आई थिंक ही डिजर्व्स इट, एंड वी जेन्युइनली वांट हिम टू स्टार्ट विनिंग द टेस्ट, टेक दैट। अगर इफ रोहित शर्मा इज एबल टू विन द पिंक बॉल टेस्ट, let me tell you that is going to be one of the biggest victories for us, even better than the first test victory, because pink ball जीतना is going to be a massive thing. लास्ट टाइम ये एडिलेड में नहीं जीते थे, 244 और 36 हुआ था ना, 36 तो पिंक बॉल में तो हुआ। बैड मेमोरीज। एडिलेड इज डिफिकल्ट प्लस द पिंक बॉल। तो we were talking about just when I cut you off about कि नए players जो अभी इंडियन, and I'll tell you ये बहुत funny है कि जो टीम मैच हारी है वो शायद अपने स्क्वाड में कोई चेंजेस नहीं करने वाली, और जो टीम विनिंग कॉम्बिनेशन लेके गई थी वो चेंजेस कर रही है। अगेन ठीक है, इट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज यू अगेन हैव बिग प्लेयर्स लाइक रोहित शर्मा, गिल, ये लोग वापस आ रहे हैं। बिफोर वी कम टू बैटिंग, मुझे बॉलिंग की बात करनी है। देयर इज अ न्यूज कि मोहम्मद शमी माइट कम बैक ओके इनटू द स्क्वाड, इट्स स्टिल नॉट कंफर्म्ड, ही माइट कम बैक, बट देन डू यू सी अ प्लेस फॉर शमी नाउ, कंसीडरिंग कि सिराज, राणा एंड बुमराह, ऑल थ्री ऑफ देम हैव डन गुड? नॉट एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 टेस्ट। अभी तो फर्स्ट तो हो गया, तो फॉर अनदर Like the next half. fit enough to so start even playing. if he comes, assuming that he gets fit by a, let's say it's a miracle, but I don't think they'll touch him before the 4th or 5th test, because I think ये squad अभी जीता है। See, the point you just said कि ऑस्ट्रेलिया changes नहीं करेगा even when they lost it, and we are going to make the changes. हमारा जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रोहित शर्मा का पता चल गया था कि ही इज गोइंग टू बी अनसर्टेन फॉर द फर्स्ट टेस्ट। करेक्ट। तो वी ऑलवेज न्यू दैट वो सेकंड टेस्ट में एक चेंज तो होने ही वाला है। गिल का हमें जस्ट सीरीज के पहले पता चला, सो इवन दैट वी न्यू कि चलो सेकंड टेस्ट में गिल आएगा। सी दीज आर योर स्टार्टर्स, यू कांट जस्ट keep them aside if the team is performing well, because they are the ones who have actually created that momentum and ये squad को उतना आगे लेके आए। So गिल एंड शर्मा तो anyways वापस आने वाले थे, शमी को they can still give that time, see, but we want him for the Champions Trophy. Sharma comes in place of Padikkal, Gill किसको replace करेगा? ध्रुव जुरैल?
I mean, that is the only realistic option. Dropping KL Rahul at this. गेल तो नहीं ड्रॉप, अभी तो- केएल को ऑलरेडी झगड़ा कर रहे हैं. Dhruv Jurel is a solid player. He sticks. Shubman Gill is a player who scores. Are you ready to replace the closest that we have to Pujara in the squad now? या करना पड़ेगा ये इतना Tough call. इतने tough question हम क्यों इतना सोच रहे हैं? अभी थोड़ी लेना डिसीजन. थोड़ी देर के लिए सिलेक्टर सारे ऐसे सोच लेगा यार. Indian squad में सबसे ज्यादा मिसिंग चीज अभी है पुजारा. We've had Rahul Dravid के बाद गैप के बाद पुजारा आया था. पुजारा was a big thing. We don't have him now. We don't have anybody who can stay there. KL Rahul did that. Yeah. But again, KL Rahul is. You know, I read this. I don't remember ये कहाँ पे पढ़ा था. मुझे genuinely याद नहीं है, and I might get a lot of bash for this. But एक there was a predicted 11 जो आ सकता है आगे के मैच में. You don't open with Rohit Sharma. ठीक है, he's in the squad. You don't open with him. You open with Jaiswal and KL, which is the current day. देखना बंद कर दो. You go with Gill and 1 down. You have Kohli at 2 down, which is your usual. Considering the fact कि Gill fit हो जाता है, Correct. and you actually use Rohit Sharma as a kind of counter-attacking player that Pant is. मतलब Pant भी है, but Rohit Sharma is in that spot. Very tough to imagine. रोहित that. शर्मा जब तक खुद नहीं बोलता ना कि मुझे नीचे खेलना तब तो वो नीचे नहीं खेलेगा. एक्चुअली अगर काउंटर अटैक करवाना है ना, उसको ओपनिंग में ही करवाओ. तुम्हें सी काउंटर अटैक में विकेट गिरने का चांस तो है ही. Hey, of course. He plays new ball. He's been playing the new ball since 2012-13 जो भी है. तो यार तुमको अगर उसको काउंटर अटैक करवाना है तो ऊपर ही बेच के कर दो. And the उसका biggest wicket गया तो asset of गया, Rahul is that he can play six. he can play. Yeah. He's actually playing. See यार, मतलब हम लोग को easy है यार क्रिटिसाइज करना. वो बहुत easy है. मतलब हम बोल देंगे अभी राहुल नीचे जाएगा और वो उधर 0 पे आउट हुआ, सब चालू हो जाएंगे यार राहुल को टीम से निकालो. I know. But यार कभी कभी when you genuinely think from that cricketing aspect, वो रोल जो राहुल प्ले कर रहा है टीम के लिए कि यार कभी भी बोल दिया तो इधर खेल, उधर जाके परफॉर्म कर रहा है. कभी भी बोल दिया ऊपर खेल, ऊपर आके परफॉर्म कर रहा है. सी तुम कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे तो प्लेयर फेल होएगा. बट वो फेल होने के बाद भी राहुल एट टाइम्स व्हेन इट इज मोस्ट रिक्वायर्ड ही इज एक्चुअली कमिंग एंड विनिंग दैट गेम फॉर यू. अभी उस सिचुएशन में तुम राहुल को नीचे खिलाओ, वो फेल हुआ तो भी रखो यार टीम में. ही इज अ गुड फील्डर. ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फील्डिंग में किधर प्रॉब्लम आ रहा है. बैटिंग वाइज यार ही इज सॉलिड. मेरे को लग रहा है तो उसको तुम नीचे भी खिलाया ना इस बार, ही विल स्टिल स्कोर 50-60 ऑड रन्स फॉर यू एट दैट. Maybe. So my only concern with Rahul is he consistent enough? Rahul is a brilliant batsman, but so is Sanju Samson. But Sanju Samson क्यों select नहीं होता? Because he is not consistent. वो एक मैच में 200 रन मार देगा शायद और फिर एक बहुत खतरनाक ड्राई स्पेल आएगा. He has to play the way he plays for Rajasthan Royals. करेक्ट. और वो रीजन है क्यों संजू सैमसन has been dropped from the Indian squad so many times. Consistency. So, राहुल का भी कंसिस्टेंसी अगेन तुम उसको वो एक स्पॉट नहीं दोगे तो वो कंसिस्टेंसी आना भी बहुत डिफिकल्ट है. बट आई गेस टीम इंडिया रिलाइज मोर ऑन राहुल देन सैमसन. मतलब वो नहीं मैं बोल रहा हूं चांसेस के वाइज भी आई गेस that's the reason why he's the lack of consistency. And I think he's an asset इतना बड़ा because he has that ability to do that. play at different this thing. Because हर एक पोजीशन में उससे अच्छे बैट्समैन हैं. Right. बस ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है जो हर पोजीशन में उतना अच्छा खेलता है. Jack of all trades, master of none जैसा वाला. So he's like Jack Callis. अभी मेरे पास अगर ब्रेटली और मतलब जहीर खान और राहुल द्रविड़ जैसा कोई है जो दोनों दे रहा है बैटिंग साइड पे बॉलिंग साइड पे. हाँ वो सचिन नहीं है बैटिंग में, वो ना ही वो ग्लेन मैकग्रा था बॉलिंग में, बट ही इज वेरी वैल्यूएबल जैक कैलिस. वैसा ही राहुल का सीन है. बट यार फिर ऐसा नहीं लगा कि बहुत क्रूअल कॉल्स हैं ऑन ध्रुव जुरैल एंड पडिक्कल इफ दे आर ड्रॉप? नहीं सी आई गेस इट्स गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर देम आल्सो. एंड ये डिस्कशन उनको ऑलरेडी बोल दिया रहेगा दैट यू आर गेटिंग अ चांस इवन मे बी इफ यू परफॉर्म तो भी तुम लोग शायद निकल ही जाओगे. आई थिंक करुण नायर के साथ भी वही हुआ था. उसको बोला रहेगा कि यार तू कुछ भी कर हम तेरे को निकालेंगे और उसने 300 मार दिए और उसके बाद भी एक्चुअली निकाला. उसके बाद उसको एक भी मैच नहीं मिला. एक भी ही इज वैनिश्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. ये सबसे सैड स्टोरी है भाई. इससे बुरा किसी का संसार में कोई मूवी में भी नहीं हुआ है. तो क्या बुरा लगता होगा ना यार. So I guess that is exactly, see communication बहुत clearly गया रहेगा. And maybe that is why you will not see that problem or maybe that rift also within the team. क्योंकि these guys already knew that Shami
आए ना आए, बट रोहित शर्मा और गिल का तो कंफर्म था कि दे विल बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड इन द नेक्स्ट 2 टेस्ट एट एनी पॉइंट। पडिक्कल और थोड़ी ना रोहित शर्मा के कुछ करेंगे Exactly. तो क्या ही बोल सकते हैं हम लोग भाई रोहित शर्मा ने जितना अचीव किया है वो क्लोज। तो he walks into the team. Padikkal तो उसने he didn't do much in this test as well to prove that no I'm worth it. That's an interesting point जो मेरे को एक्चुअली बहुत लोगों ने पूछा है। मैं कोहली फॉलो करता हूँ, लाइक आई एम अ वेरी बिग कोहली फैन एंड नो सी इधर है ना वो एक क्वेश्चन आ जाता है, एवरीवन वाज आस्किंग कि यार कोहली और रोहित शर्मा फेल हो रहे तो भी इनको इतने चांसेस क्यों? मैं अभी वही बोलने वाला था, प्लीज गो अहेड। सो एग्जैक्टली द पॉइंट कि यार ये लोग ने जो अचीव किया है ना, वी सी इट्स नॉट दैट दे आर मेकिंग अस लूज गेम्स, the other players are supporting them, they are also carrying the team along with what Rohit Sharma and Virat Kohli are doing. True. Take the example of the T20 World Cup. स्टार्ट से लेके फाइनल तक विराट कोहली ने कुछ नहीं किया, रोहित शर्मा पूरा लेके जा रहा था टीम को बैटिंग वाइज। फाइनल में जब रोहित कुछ नहीं कर पाया, विराट स्टेप्ड अप। They complemented each other really well, but it was that proven history that यार these guys are your match winners. Of course, अक्षर पटेल, मैं किसी का contribution negate नहीं कर रहा हूँ, we are just talking about रोहित and कोहली. So even before we came to Australia, यार ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्या हाइप किया था कोहली को, एंड वो ऐसा नहीं है ना यार कि सिर्फ पेपर में छाप देंगे तो हाँ किसी का मोरल डाउन हो जाएगा कि हम लोग माइंड गेम्स खेल रहे हैं। तुम कुछ भी करो, कोहली ने फिर से प्रूव करके दिखाया। 7 centuries in यार Australia. इट्स नॉट अ जोक, 8 नाउ, सचिन का 7। Yeah, he is more Sachin was very good in Australia. सचिन से ज्यादा सेंचुरीज मतलब तुम क्या It's बोल his रहे home हो? ground. Exactly, विराट कोहली But for the case of Rohit Sharma, so are you trying to say कि hypothetical, ठीक है, let's say कि someone like a Dhruv Jurel या Padikkal बहुत crazy खेल गया होता है यार, पहला टेस्ट मतलब 100-150 मार लिया, बंदा पुजारा ऐसा इनिंग्स खेल गया जुरेल, उसके बाद भी you have to drop him 400 500 600 1000 रन भी मारा होता है तो भी कौन सा हजार वाला दाना दाना धनवाड़ा क्या बड़ा नहीं हुई था धनवाड़े हाँ, वैसे ही वो कुछ भी बाकी मारो। लोग से 15 साल बड़ा था भाई अपने एज कैटेगरी नहीं, बट वो फैक्ट है, सो दैट वाज गोइंग टू हैपन यार। यू कांट, यू हैव हैड योर सेट प्रैक्टिसेस, तुमने तुम्हारा टीम पहले से डिसाइड कर लिया है। सी ये एनालिसिस ना हम जिस लेवल पे कर रहे हैं ना उससे 10 गुना ज्यादा हो रहा है। Of course, उन लोग पिच, हम लोग जब पिच देखा भी नहीं रहेगा उसके पहले उनके पास पिच रिपोर्ट्स थे, तो वो लोग तब से एनालाइज करके ऑलरेडी 5 टेस्ट में उनके कॉम्बिनेशंस क्या है मेंटली तो प्लान्ड ही है। Right. अब वो सिचुएशन पे है कि गिल चलो फर्स्ट टेस्ट में नहीं आया, गिल को निकाल के हमने दूसरे को चांस दे दिया। इफ लेट्स से पडिक्कल और जुरेल माइट हैव प्लेड दैट काइंड ऑफ इनिंग्स, they would have been the first choice if something bad would happen. But Rohit and Gill coming in, it's going to be a walk-in for them. And Kohli और शर्मा का ना it's about that one day. The innings that Kohli played at one of the greatest innings that I've ever seen in my life is the T20 innings semi-finals जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था। Oh, Melbourne. The composure, the shots, the way he went behind Haris Rauf. अभी वो सोचना, Kohli said afterwards कि I went deliberately. Haris Rauf was the best bowler throughout the match. तो बोला I had to go behind him ताकि वो लोग ठंडे हो जाए, वरना वो लोग खा जाते हमको। तो इस लेवल का थॉट जो हमारे मन में तो आता ही नहीं। आई डोंट थिंक यंग प्लेयर्स भी इतना सोच सकते हैं। I think Jaiswal did that. जायसवाल स्टार्क के पीछे उनका बेस्ट बॉलर था फर्स्ट इनिंग्स का। एंड उसको मुंह पे बोल देना, मतलब इमेजिन कि स्टार्क भी उधर खड़े रह के देख रहा था कि ये बच्चा मेरे को बोल रहा है। तो इमेजिन हेजलवुड, कमिंस, वो लोग उसके अराउंड होंगे, वो क्या सोचते होंगे यार ये आके इसको बोल के गया, Right. तो हम तो अभी क्या ही करे, ऐसा हो गया। अच्छे ने बोला भाई क्रिकेट इज टैलेंट और जो स्किल है ना वो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है फर्स्ट क्लास और इंटरनेशनल में भी, बट इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, द वे यू अप्रोच इट। True, but speaking of that and coming to, now we have the second pink ball. Day night test है. Just before we talk about anything else, मैं एक reference यहाँ पे आपको बताता हूँ. So Perth पे, okay, before this match happened, Australia का जो current form था was played 4-1-4 and Adelaide के लिए it is played 7-1-7. So it's again pitch perfect for them. तो मुश्किल होने वाली है इंडिया के लिए. I think, okay, and this is my theory. So India struggles the most in conditions where the ball is swinging in the air. England. Adelaide में it swings in the air. Perth में it was so difficult to play because first day पे it was swinging in the air. There were overcast conditions.
plus off the pitch था, which is like an impossible combination. Yeah. Second day पे it got easier, पर वो सब कुछ पिच की गलती नहीं थी. ऐसा नहीं था कि पिच इतना बदल गया कि इजी हो गया. सेकंड डे पे हवा में स्विंग बंद हो गया था क्योंकि धूप आ गई थी. करेक्ट. तो वो बहुत बड़ा फैक्टर था सेकंड डे पे, which Adelaide में बहुत बार there is swing in the air. Correct. So it nips in the air and the pitch is also good for bowlers. That's why Adelaide gets really difficult for anybody. And it is good. Like I'm sure Bumrah भी enjoy करेगा वहाँ bowling. Bowlers तो definitely करेंगे यार. For them it's going to be a paradise. But see, if you look at the last ping ball test, हम first innings में we scored 244. एंड सेकेंड इनिंग्स में वो 36 ऑल आउट हुआ था. अब वो 36 ऑल आउट, इफ यू लुक एट द हाइलाइट्स अगेन, मतलब आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव सीन दैट हाइलाइट जस्ट टू फिगर आउट कि हुआ क्या था यार. बट आई गेस दैट वाज वन ऑफ द डेज दैट एग्जैक्टली व्हाट ऑस्ट्रेलिया फेस्ड ऑन दैट डे वन. मतलब suddenly they were also so clueless, and उस दिन हम इतने clueless थे यार, सब बाहर के बॉल या कुछ भी हो रहा था. and if you looked at the pitch map of that 36 innings, सारे के सारे बॉल्स गुड लेंथ, यही एरिया के बारे बॉल्स थे. ऐसा कोई भी नहीं था कि शॉर्ट बॉल या फिर एकदम आके कोई एकदम बाउंस हो गया. so ये टेस्ट मैच, as much as we know that ping ball है, एडलेड में है, हम 36 ऑल आउट हुए हैं and we might lose this test upfront, सब पहले ही बोल रहे हैं, there may be a good chance that we might be able to turn it around. अगर हम वो 250 भी पैरामीटर लेके चले कि हम दोनों इनिंग्स में somewhere around that score if we are able to score, and the way we are bowling right now, ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर है बॉस. मतलब उन लोग के तो बैंड ही बच चुके हैं क्योंकि इतना उनके ऊपर भी क्रिटिसिज्म आया है. एंड WTC फाइनल का जो स्टेक है, इट्स ऑन बोथ द टीम्स राइट. जितना हमको 4-0 जीतना है या जितना हमको 3-0 या जो भी करना है, उतना ही उनको भी करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी टीम राइट नाउ इज लुकिंग फॉर दैट टॉप 2 स्पॉट. तो ये टेस्ट जितना डिफिकल्ट लग रहा है, अगर वो चीज निकाल के इफ दे आर प्लेइंग टू देयर नेचुरल गेम, एंड इफ रोहित शर्मा इज एबल टू काउंटर अटैक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, लेट मी टेल यू, ये टेस्ट भी इंटरेस्टिंग जा सकता है. I mean, yeah, of course. So, you said so much. I want you to give a final prediction कि win किसका आ रहा है. इतना सब बोल लिया, अभी मुद्दे की बात करो यार. यार सी, जैसा रितेश ने बोला यार कि सब पंडित्स ने बोल दिया था 3-0 हार रहे, 4-0 हार रहे. मैं बोल रहा हूँ कि यार हमारा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 2 सीरीज से है. 18-19 में भी हम जीते 2-1, ये लास्ट वाला सीरीज भी हम जीते. आई एम सी, मेरे को मैं प्रॉब्लम ये है ना, मैं बोल दिया और जिंक्स हो गया ना, तो सब मेरे को गाली देंगे. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा कंट्रोवर्सी चाहिए. जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट इट टू बी जिंक्स्ड, मैं बोल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जीतेगा. अब तुम समझ, ये बहुत सेफ बेट है यार. ठीक है भाई, डिप्लोमेटिक. कल को ऑस्ट्रेलिया जीत गया, मैं तो बोला था. ये बहुत सेफ बेट है. ठीक है भाई, करना पड़ता है यार. What about you? See, I'll hold you to the gunpoint now. My whole thing is, people say कि पिच खत्म हो गया था, पिच नहीं खत्म हुआ था क्लियरली क्योंकि हमने भी बॉलिंग की and we got them out. So there was things in pitch. Australia bowled really badly. They were all over the place, full shot, idhar udhar. There was no consistency. Now, considering Australian bowlers are not performing at the level that they should, I feel Adelaide could be ours. My only issue is the way ball is going to swing in the air, because एक तो Adelaide है, तो it's going to be cooler than the rest of Australia. Plus, it's a day-night test match, तो night में और ज़्यादा swing आएगा. Actually, difficult period is exactly between that night time and that evening. वो जो period है जहाँ पे light थोड़ा कम हो जाएगा, when it's that natural अपने ground का lights, and that is where that ball shines a bit more. And वो जब वो phase आएगा ना, and if we are batting at that point of time, of course ऑस्ट्रेलिया का भी वो पॉइंट पे कभी ना कभी आने वाला बैटिंग, हमारा भी वो टाइम पे आने ही वाला है. दैट इज गोइंग टू बी द डिफाइनिंग मोमेंट ऑफ दैट टेस्ट मैच, बिकॉज वो पीरियड में दोनों टीम में से जो टीम निकाल लेगा ना खुद को, आई थिंक फॉर देम इट्स गोइंग टू बी गुड वे टू. सो इट्स अ बॉलर डोमिनेंट मैच. यार अभी तो ऐसे ही हो गया है. उनका तो बॉलिंग लाइनअप ऑलरेडी डेडली है. एंड सी, ऑस्ट्रेलिया इज अ चैंपियन टीम. मतलब फर्स्ट टेस्ट में जो हो गया वो बाउंस बैक करेगा. वो लोग वापस लाइन पकड़ के, यू नेवर नो, वो लोग सच्ची में आके ना वो एक स्पॉट डिसाइड करके सारे के सारे बॉलर वही स्पॉट पे डाल सकते हैं. वो इतना अच्छा है. बट हमारा भी बॉलिंग हैज, आई मीन जो टर्न अराउंड आया है इंडियन क्रिकेट बॉलिंग में, एंड आई गो बैक टू रवि शास्त्री कि भाई
पिच चाहे पिच को निकालो गेम से, हाँ। जोहान्सबर्ग, ये पिच को निकालो गेम से। 20 विकेट चाहिए भाई, और ये 20 विकेट वाला मेंटालिटी जो इंडियन बॉलर्स में आया है ना, आई थिंक इट्स एट बॉलिंग कंपैरिजन वी आर वेरी इक्वल राइट नाउ। वो डिफरेंशिएटर फैक्टर में कंसिडर नहीं करूंगा, जो होएगा बैटिंग पे डिपेंड होगा। So safe to say that you're saying Australia will win, you're saying India will win. I thought, okay, I was very sure कि ऑस्ट्रेलिया का सीरीज है ये, but I still feel one test does not decide everything. I think it's Australia. See, and another point here is that यार दोनों टेस्ट के बीच में गैप भी इतना बड़ा है ना। हाँ। वो You know, sometimes I think यार ये बीच में क्या प्रैक्टिस मैच रख देते हैं। People are saying वो बहुत smart strategy है so that Australia don't have to rest their main bowling attack. See, but that happens every tour. It's not that ये टूर में ये लोग बीच में लेके आए हैं। Every time we tour Australia, we know that first टेस्ट के बाद एक ये प्रैक्टिस गेम आ ही जाता है। But वही प्रॉब्लम है कि इस बार and हम तो एक्चुअली खुश होते थे because फर्स्ट टेस्ट हम हार जाते थे, तो हमको टाइम मिलता था सेकंड में जाके वो चेंजेस करने के। हाँ, true. अब पूरा प्लान उल्टा हो गया, हम मोमेंटम कैरी कर रहे हैं, अब वो लेके गए या नहीं गए वो अभी सेकंड में पता चलेगा। बट ये गैप इज अ बिग वरी फॉर मी। मतलब मैं वो खाली एक पॉइंट देख रहा था कि यार ये छूट नहीं जाना चाहिए जो मोमेंटम। एडिलेड में अगर 1-1 हो गया, फिर भगवान भी नहीं बता सकते आगे क्या होगा। सिडनी में तो बारिश खुल जाएगी पूरी। सिडनी में बारिश क्या सेटअप होगा ये 1-1 at Adelaide। हाँ। नेवर नो कैन बी वॉश्ड आउट आल्सो, मतलब उधर बारिश हो जाता I think that is the only test that could probably get washed That out. is the only test. MCG, SCG is dead wickets, ज्यादा कुछ है नहीं पिच में, वो एंड में स्पिनर्स का पूरा खेल हो जाता है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी मच। अश्विन जडेजा कैन कम तभी सो वो तो उधर है। पेस बॉलर्स का है फर्स्ट 3। अब एडिलेड में तो अगेन इट्स पेस बॉलर्स एंड गैबम, तो वी ऑल नो पेस बॉलर्स के लिए बना। मजा आने वाला है यार, मतलब इतना एक्साइटिंग सीरीज है ना ये, कुछ बोल नहीं सकते बट Seriously. इमेजिन दैट आवर WTC होप्स आर रेस्टिंग ऑन दिस सीरीज यार। मतलब 2 बार हम वहां तक पहुंचे, इट्स गोइंग टू बी हार्ड फॉर अस टू बिलीव दैट वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस WTC फाइनल। But we've kind of brought that upon ourselves there. मतलब इतना डिपेंडेंट होना ऑस्ट्रेलिया की सीरीज पे वो न्यूजीलैंड के लॉस के बाद ही हुआ। 3-0 was, मतलब I could not believe 3-0. They couldn't play spin, मतलब we looked like how Ollie Pope looked playing Ashwin. बेचारा कूद रहा था वो पप्पी जैसे। अक्षर पटेल फॉर दैट मैटर यार, अक्षर पटेल ने इंग्लैंड को ऐसे ही घुमाया था। और मैं बोल रहा हूँ क्या हो क्या, और यार सीरियसली यार एजाज पटेल और वो ग्लेन फिलिप्स कौन है? नहीं है यार, मिचेल नो डिसरिस्पेक्ट बट It's not disrespect. They know the fact they are part timers यार। मैं वही बोल रहा हूँ ना। Not अजाज पटेल, मैं ग्लेन फिलिप्स का बात। एजाज पटेल सिर्फ एशिया में आके विकेट लेता है, लेकिन Actually उसके पास he is a traditional left arm off spinner and maximum he has an arm ball, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। There is, मतलब इतना खतरनाक नहीं है भाई वो कि पूरी इंडियन टीम एक भी मैच उधर जीत जाते थे ना, जो एक्चुअली वानखेड़े से होप था कि चलो ठीक है 2-0 हार रहे 2-1। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, जब तक अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर थे मुझे तब तक होप था। The moment अश्विन played that reverse sweep, मैंने ना अश्विन का बैट ऐसे जाते हुए देखा और पेट बॉल नहीं कर रहा था, लोग यहाँ पर खत्म पूरी गेम। मतलब लिटरली तब तक हम लोग सोच रहे थे कि यार निकल जाते स्टेडियम से, निकल जाते करके, और तो नहीं यार है वॉशिंगटन सुंदर है, अश्विन है, नहीं निकलेगा। But I think a big factor over here was Virat Kohli was very active with his pacers and it reminded me of the old days. एंड मैं ना प्रे कर रहा था इसके पहले कि कोई एक ऑस्ट्रेलियन ना आके कुछ ऐसा उसको गाली दे दे या बॉल मार दे या धक्का दे दे, अंदर का उसको दिल्ली वो निकले यार। मेरे को एक निकल रहा है अभी ना, वो अच्छा लग रहा है वो जो आके करता है ना, बुमराह के विकेट के बाद तो सेलिब्रेट किया। उसका जो 100 भी हुआ ना, अभी पता नहीं वो कितना एक्टिंग किया उसने। वो पहले देख रहा था कि हुआ कि नहीं। He would have known that he had scored, like he scored that boundary and got to his 100। वो जो उसका एनिमेटेड ये होता है ना सेलिब्रेशन, we needed that। And ये maybe because he missed it out or I don't see यार, मैं बाहर से देखने के लिए बोलने के लिए बोल सकते हैं कि वो तो एक्टिंग कर रहा था। क्या हुआ, मैंने सेंचुरी मारा, उसको पता नहीं चला कि 4 गया है because उसने सेव किया राइट। हाँ, and ball went straight। नहीं, he didn't knew that he scored a century also because he asked the keeper कि did I complete my century or something like that। नहीं वो रुका था कि अगर बाउंड्री नहीं रहा तो हाँ कंप्लीट है। 99 पे कर देता ना तो बहुत वो हो जाता, तो वो 96 पे था एग्जैक्टली। अगर एनिमेटेड सेलिब्रेशन आता था ना, मजा। बट वो जो है ना कि बुमराह कर रहा है और कोहली पीछे से आके कर रहा है, that was the दिल्ली, उसके अंदर का जो दिल्ली ने कहा था वो देखना था मुझे यार। मतलब खुश हूँ। इमेजिन करो विराट कोहली ने इंडिया में ईशांत शर्मा और उमेश यादव के साथ मैचेस जीता है।
तो वो बॉलर्स को जो बैक करता है वो, और सेलिब्रेट विकेट्स पे तो यार ऐसे करते जैसे उसने ही सारे ईशांत शर्मा तो भी बहुत अच्छा था. उमेश यादव आई वाज नेवर टू श्योर ऑफ हिम, बट उसने इंडिया में उमेश यादव फ्लरिश्ड अंडर कोहली. Oh, that was a good phase for Indian cricket. But I think yeah, that's been it for this episode. अभी सारे आके एडलेड के मैच पे तो वो देखेंगे क्या होता है. होपफुली एक और कोहली सेलिब्रेशन सेंचुरी के बाद जितना एनिमेटेड आप होप कर रहे हो वो वहां आएगा. होप्स मत लूज करो. See, everyone has highlighted the fact that कोहली ऑस्ट्रेलिया में आएगा तो 3-4 सेंचुरी पक्का है. 3-4 ठीक है. अरे उसको इनिंग्स ही तुमने 5 टेस्ट दे दिए, 10 इनिंग्स उसको मिल रहा है, तो सबने तो प्लान कर लिया 10 में से 3-4 तो आ ही जाएगा. हाँ, ये परसेंटेज अच्छा उसने है. पहले 2 में से 1 तो निकाल लिया. True. अब बाकी के 8 में से उसको 2 निकालने हैं. अगर वो 2 भी निकाल दे, he will still be amongst the top 5 or 6 run getters in this series. Yeah. मतलब इमेजिन उसके ऊपर भी प्रेशर है. एंड I don't want to say this, but यार honestly I feel we are looking at the end of Virat Kohli. मतलब हम जितना very near to the end. I won't say the end. चाहते हैं कि वो खेले, हम जितना चाहते हैं कि वो खेले, I don't know यार. I feel उसका वो इस बार मेरे को डिफरेंस दिखा, वो अग्रेशन दिखा, पैशन दिखा, बट इसके पहले के सीरीज में वो बॉडी लैंग्वेज मुझे अब तक नहीं दिख रहा था. तो दैट इज वेयर आई ऑलवेज फेल्ट यार वो जाएगा. बट ये सीरीज माइट बी दैट टर्न अराउंड that might make him plan to stay in this. See, वो टेस्ट भी खेले ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं. I mean, I want him to play cricket as long as possible. Yeah. Same for Rohit Sharma. Rohit Sharma, I think he's a fab T20 player, much more than what he does in Test cricket. उसको आके T20 में पावर प्ले भी उसने डोमिनेट कर लिया ना. खत्म. ODI also first 10 overs you dominate, even if you are out that's fine. But you did your job basically. Yeah. So यार विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, आई वांट रोहित टू कम बैक एंड स्कोर अ गुड सेंचुरी और मे बी इवन अ डब्ल्यू. ओ भाई तो खेलते भी डबल सेंचुरीज में ही है. तो अगर कुछ कर एक लफड़ा चाहिए ऐसा फुल. वो जॉनसन पे जैसे बॉल फेंका था ना, फिर उसने बोला तू आ भाई. फिर जो उसकी मोमो की चटनी बनाई थी मुझे वो चाहिए. हाँ यार एक लफड़ा आई थिंक सिराज कर सकते हैं. एक लफड़ा सिराज ही करेगा भाई. सिराज अलग मूड में चल रहा है फिलहाल. या फिर जो स्टार्क जायसवाल ने स्टार्क को बोला था, इस बार स्टार्क ने उसका विकेट लिया था, फिर भी राणा स्टार्ट कर सकता है. पर बहुत ना शांत आदमी यार. वो होगा लफड़ा तो हेजलवुड के साथ होगा. हेजलवुड खड़ूस है. वो देख वो जब डाल रहा है ना, इफ यू लुक एट हिम, वो एवरी बॉल के बाद आके ही लुक्स एट द बैट्समैन की यार तू ये बॉल पे तू आउट ही था, तू बच गया. तो वो पैशन, अग्रेशन, फाइट. I think he was the best pacer among Pat Cummins and Stark. So consistent. Hazelwood, it's like it's a bowling machine. वो आता है, डालता है, go straight. Closest to McGrath. Damn good. मजा आएगा. This test is also going to be a good one, especially for us that वो जो लास्ट सीरीज में हुआ था and we want to remove that point of 36 all out. If you are able to win it in any way, I guess that will be a good change around. तूने लो ना अगर तो खत्म हो गई सीरीज. फिर अपनी तो खत्म. मतलब फिर यार I don't want to say it, but ठीक है. मिनिमम ड्रॉ है. फिर ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जीत रहा. फिर नेक्स्ट टेस्ट हम जीत गए और सिडनी वॉश आउट हुआ. खत्म. ऑस्ट्रेलिया को हम 500 के 1000 रन भी बना देते थे. हम क्लाउड सीडिंग करा दो. टू ऑल, कोई टेंशन नहीं है. I don't want to jinx it, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ. तो देखेंगे अगले मैच के बाद देख लेंगे. But yeah, I think that's been it for this episode, and hopefully we'll see you for more content on Game Time Banter. This has been us.